Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is chemical properties of aldehyde and ketones, and the last reaction of aldehyde and ketone is electrophilic substitution reaction, and after this reaction we will discuss about the next portion of the chapter, that is carboxylic acid. So we finish the reaction, chemical properties of aldehyde and ketones, and the last one is electrophilic substitution reaction, ESR. Electrophilic substitution reactions, ESR, are the characteristic reaction of aromatic compound. So we have to take aromatic compound, that is aromatic aldehyde or ketone. Suppose we take benzaldehyde molecule. This is the benzaldehyde, C double bond and H. Benzaldehyde molecule, and this benzaldehyde if undergoes ESR like nitration reaction, then what happen? We have to take the nitrogen mixture, that is concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. Concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 is known as nitrogen mixture. By the reaction of H2SO4 and HNO3, an electrophile is generated, which is nitronium ion, NO2 plus ion. This is known as nitronium ion, and nitronium ion attached to the benzaldehyde ring. But question is that on which position? नाइट्रोनियम आयन यहाँ जनरेट हो गया नाइट्रोजन मिक्सर से, लेकिन यहाँ पे कौन सी कंडीशन में जाके जुड़ेगा? बिकॉज द बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वहां पे एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, तो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन वहां पे जाके अटैच होगा, जहां पर ये CHO जुड़ने के लिए उसको डायरेक्ट करेगा. तो CHO कहां जुड़ने के लिए डायरेक्ट करेगा, ये सोचने वाली बात है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इस ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है इस ग्रुप का. CHO ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जुड़ने के लिए बोलता है. तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस CHO ग्रुप. डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस देखने के लिए आपको देखना है उसका रेजोनेंस. सो वी अगेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, C double bond O and H. Now we see the driving force of electrons. Okay, so what happened? We know that CHO group is the electron withdrawing group. Which group is this? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ग्रुप का. बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. क्यों करेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन. सो डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन यदि खींचेगा, then carbon feel electron deficiency and gain positive charge. Then what happen? Then the double bond of benzene shifted towards this CHO group, and what will be the condition of this compound? The next resonating structure of this compound will be double bond shifted towards carbon, and single bond converts into double bond converts into single, and this is the negative charge, and this one is H, this bond and this bond as it is. Okay, तो इस डबल बॉन्ड ने मूव किया किधर? कार्बन की तरफ. तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, जैसे कार्बन की तरफ किया तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चला गया है. नाउ व्हाट हैपन? वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम डिक्रीजेस, सो पॉजिटिव चार्ज अराइजेस हियर. What happened in the next structure? In next structure, double bond move towards this positive charge, and the next resulting structure will be, जहां पर जो चेंज आ रहा है वही चेंज हमें शो करना है. There is no change in this ion, CH or negative. This bond is as it is, and this bond migrates toward double positive charge. So now positive arises on this para position. क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ हट गया, तो उस पॉजिटिव को जैसे ये बॉन्ड मिला वहां का चार्ज हो गया कैंसिल, और वैलेंसी होगी कंप्लीट. सो द थर्ड स्ट्रक्चर इज दिस. नाउ व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या होगा? This bond move toward the positive
then there is no change in the C double bond O, negative H, C डबल बॉन्ड कार्बन फिर O नेगेटिव एंड H, यहां पे कोई चेंज नहीं है, ये डबल एज इट इज है, एज इट इज। और राइट साइड का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया पॉजिटिव की तरफ इस पोजीशन पे। नाउ पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन दिस कार्बन एटम, ओके, एंड व्हाट हैपन इन द लास्ट स्ट्रक्चर? इन लास्ट this double bond move towards the positive charge and the negative of oxygen move towards carbon and form double bond again. So the last resonating structure of this compound will be double 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 single C double bond O and H. क्या फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। फर्स्ट और लास्ट सेम है, CHO लगा हुआ है? नो, दे आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हैं बेंजीन के अंदर की पोजीशन, दे आर द केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अंदर की पोजीशन डिफरेंट है, सो द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट विद ईच अदर। अब देखेंगे हम इसमें कि जब हमने बेंजल्डिहाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम बना लेते हैं कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड। व्हाट इज मीन्ड बाय रेजोनेटिंग हाइब्रिड? दिस इज द वन satisfactory structure of all resonating structure in which we can see the migration of pi bond और pi electron। तो क्या पूरी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? यस, डेफिनेटली घूम रहे हैं। और उसके घूमने से कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डिमांड हो रही है। व्हाई? बिकॉज CHO इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है वैसे? ऑर्थो पर, देन पेरा पोजीशन पर, देन ऑर्थो पर। किसकी ऑर्थो, किसकी पेरा? हियर CHO ग्रुप इज प्रेजेंट, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो क्या डबल बॉन्ड सभी पोजीशन में है यहां पे? नो। तो ये बॉन्ड यहां से मूव कर रहा है, तो अब इसको क्लियरली शो कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे कभी कभी आ रहा है और कभी कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, ओके। सो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ दीज ऑल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? वी कैन सी क्लियरली इन दिस रेजोनेटिंग हाइब्रिड दैट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attach on either this position or this position। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज क्या पॉजिटिव चार्ज वाली जगह जुड़ेगी? नहीं, पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है CHO ने इलेक्ट्रॉन खींचकर। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा? या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है? विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इट इज द 1,3 पोजीशन विच इज नोन एज मेटा इन कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम। सो कंक्लूजन ऑफ ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज बेंजल्डिहाइड इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और यदि कीटोन होता यहां पे CH3 होता तो भी डबल बॉन्ड उधर ही खींचा जाता ऑक्सीजन की तरफ। ये COCH3 भी किसकी तरफ बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो हम बोल सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन दोनों ही क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं नेचर में। सो दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच ऑन द मेटा पोजिशन। नाउ कम ऑन द रिएक्शन। अब आते हैं इस रिएक्शन पे। बाय द रिएक्शन ऑफ कंसेंट H2SO4 एंड कंसेंट HNO3, NO2 प्लस जनरेट्स एंड गोज टू विच पोजीशन? ऑर्थो, मेटा और पेरा। सो रिमेंबर ऑलवेज कार्बोनिक कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन behave as meta directing group. Why? Because CHO group is the electron withdrawing, it takes the electron of benzene ring, so the electron density from the ortho and para decreases and positive charge arises, so NO2 group attach on the meta position and the product will be
NO2 group attached on the meta. So this is the product of this reaction. Okay, meta nitro benzaldehyde. Meta nitro benzaldehyde will be there. Okay, this is the product of electrophilic substitution reaction. Now we will discuss about carboxylic acid. That is the second part of this chapter in next lecture. Thank you so much.